क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1x बैट में आपका स्वागत है। आज का मैच है बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड्स और ये मैच होने वाला है एर्नॉस वेल ग्राउंड, किंगस्टन सेंट विंसेंट में। इस मैच में काफी कुछ अलग होने वाले हैं क्योंकि दोनों ही टीम कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान है अपनी परफॉर्मेंस से। अभी वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करती है, फिर दूसरे मैच में परेशान हो जाती है। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारे पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेंथ टीम की, इन पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे दो गेस्ट, जिन्हें मैं आज स्क्रीन पे इनवाइट करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी तन्मय मिश्रा को, फॉर्मर केन्या इंटरनेशनल क्रिकेटर। सर, आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। Thank you, Damini. Hello to you and your viewers. थैंक यू तन्मय। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी फहाद नवाज को। करंट ओपनर है, ये यूएई क्रिकेट टीम प्लेयर है, आज हमारे Right. साथ जुड़े हैं। फहाद, आपका स्वागत है। Hello everyone. So what do you think about today's match? They are in a bad shape when it comes to few matches. What do you think about both the teams? Let's start with Tanmay. Tanmay, what do you think about it? I think, look, both of them have won one match, and Yes. Bangladesh clearly a more experienced side. But again, I think both teams have to tackle the fact that they are playing on a very fresh wicket, a wicket and a ground that has not been used for a very long time. I don't know if people know this. So we don't know what to expect. Obviously, it will be much better than New York. But then again, I think there is an opportunity for both the teams to sort of knock out Sri Lanka today. Whoever wins, automatically, Sri Lanka gets knocked out. And I think both teams have a very good chance of, claiming and another opportunity to, get into the tournament, get form. We've seen Bangladesh batting, especially it's been under the microscope. The captain, Liton Das, has gotten starts, but he hasn't been able to capitalize. So they will be looking to, tick those boxes. Saqib hasn't come to the party. So I'm rooting and hoping to see Bangladesh give a more professional performance today that they're known for, and try get more momentum into this tournament. Right, Tanmay. Like the way Tanmay has mentioned just now about the field, let's talk about it, Fahad. What is the difference between the previous field and today's field where they're going to be playing? Let's talk about the pitch. Let's talk about the toss. What will be the impact of these two things on today's match? As Sanjay said कि ये एक नया ग्राउंड है, नया विकेट है, तो कुछ भी हो सकता है सरप्राइजिंग कि यहाँ पे 150 भी होके भी मुश्किल से चेज़ हो रहा है और 100 रन भी बहुत मुश्किल से चेज़ हो रहा है। तो वहाँ की विकेटों को हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि एक क्वेश्चन मार्क है विकेट्स को लेके कि किस तरह वो बिहेव करेंगे विकेट्स को आज के मैच में, कि एक न्यू ग्राउंड है, न्यू विकेट है। राइट। तन्मय, आज के मैच में टॉस का जीतना कितना इम्पोर्टेंट है? अगर मैं कहूँ कि अगर समझे बांग्लादेश जीत गई टॉस, तो उनको क्या चीज़ पहले चूज करना चाहिए? आजकल ट्रेंड चल रहा है, वर्ल्ड कप में देख रहे हैं कि आजकल एवरीवन इज चूजिंग टू फील्ड फर्स्ट and they are not going for batting. So this is a trend which is going on for this particular 2024. It has always been there, but इस समय ऐसे ही हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए आज के मैच में बांग्लादेश को, या कुछ अलग करना चाहिए? What do you think about it? I think Damini, you've actually answered the question really well itself. What has happened is, when it's a fresh wicket, थोड़ा unpredictability रहती है. एक और चीज मैं फहद के पॉइंट को ऐड करना चाहूंगा while I'm answering this question is क्योंकि ये सारे वेन्यूज 3-4 वेन्यूज ही हैं अब वेस्ट इंडीज में जहां बहुत सारे मैचेस होंगे, तो नॉर्मली ऐसे टाइम पे क्या होता है कि थोड़ी सी घास छोड़ी जाती है तो लॉन्जेविटी ऑफ द विकेट हो, क्योंकि इन्होंने आज खेला फिर कल कोई टीम और खेलेगी, तो चांसेस हमको देखने को मिलेंगे शायद थोड़ी घास हो ताकि विकेट लॉन्ग लास्ट करे दूसरे मैचेस के लिए भी। तो जहां तक अगर बांग्लादेश टॉस जीतेगी तो मुझे डाउट नहीं है, जहां तक उनकी बॉलिंग रही है सुपर्ब रही है, डेथ बॉलिंग तो अमेजिंग ही रही है। एक और अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाएगी कि फ्रेश विकेट में अपने नई गेंदबाजी जो बॉल हिलाते हैं बॉलर्स, उनको भी थोड़ा विकेट मिल जाए, वो कॉन्फिडेंस ले ले, क्योंकि बैटिंग इतनी अच्छी कर नहीं रही है। तो मेरे हिसाब से जो भी टॉस जीतेगा, लाइक यू ऑलरेडी सेड, फ्रेश विकेट पे एक आइडिया मिल जाता है। जब ओपोनेंट पहले बैटिंग करती है मुश्किलें रहती हैं, हमने बहुत बार देखा है कि बॉल कटती है, बॉल फंस के आती है, तो ये सब चैलेंजेस क्या होता है कि बैट्समैन जो फील्डिंग कर रहा होता है वो ऑलरेडी अवेयर रहता है, सो इज मच बेटर प्रिपेयर्ड। सो like you've already said, most likely they will field first unless it's a flat wicket, but we don't know what the wicket holds for us. राइट। तन्मय, अब फहाद, मैं आपके पास यहाँ पर आती हूँ कि एक पिछला मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ नीदरलैंड्स का, और वो हार गई।
और काफी बुरी तरीके से हारी, 9 आउट थे उनके सारे के सारे, टीम ऑल आउट हो गई थी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार उन्हें कौन सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए जो आज का मैच को बेटर कर सकती है? देखिए ये है कि हमें जैसे पता है कि विकेट एक नया नया होगा, नया शो करेगा, विकेट एक नया बिहेव करेगा बॉल। तो आई थिंक यहाँ पे बैट्समैन को ये है कि वो थोड़ा टाइम लें और विकेट को ज़रा देखें किस तरीके से है, क्योंकि टॉप ऑर्डर अगर आपको गुड स्टार्ट देते हैं तो आप एक टोटल अच्छा सेट कर पाते हैं टीम के लिए। तो ये है कि टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए आई थिंक बैटिंग वाइज में, और जिस तरह वो लोग चल रहे हैं। तो आई थिंक बॉलिंग उनकी अच्छी है, बस ये है कि बैटिंग में अगर वो अच्छा टारगेट सेट कर देते हैं तो उनके लिए और अच्छा हो जाएगा सामने। राइट, वहाँ तन्मय यहाँ पर इस वाली फील्ड के बारे में बात करना चाहूंगी। इस स्टेडियम में अभी तक 2 ही T20 मैचेस हुए हैं, ज्यादा कुछ खेले भी नहीं गए, जैसा आपने मेंशन भी किया कि बहुत कम मैचेस हुए हैं। इस तरीके के ग्राउंड में जहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल है, तो वहाँ पर किस तरीके की बल्लेबाजी ज्यादा जोरदार रहती है? पिछली बार हमने देखा कि जितने भी ट्रिक्स वो लगा रहे थे वो लग नहीं पा रही थी और कोई भी अच्छे रन उतना बना नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर किस तरीके की टेक्निकली होना चाहिए? एक्चुअली जो मैचेस न्यूयॉर्क में हुए थे, पार्डन मी, उनको भूल जाना चाहिए थे। वो विकेट बहुत ही डिफरेंट थे। यहाँ क्या है, यस बहुत टाइम से मैच नहीं हुआ है, बट वेस्ट इंडीज की विकेटें वेरी सिमिलर रहती है जहाँ इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश जो खेलते हैं। तो यहाँ 160 170 का एवरेज स्कोर होता ही है, बॉल बेटर आता है। तो कोशिश इनकी क्या रहनी चाहिए ये आज के लिए कि थोड़ा मोमेंटम लेके आए, थोड़ा पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, जो कि बांग्लादेश को बहुत जरूरी है। अगर बांग्लादेश के नजरिए से देखें, उनकी बैटिंग नहीं है, तो एक आके है ना, एक फ्री फ्लोइंग, आपको दिखाना है कि व्हाई यू बिलोंग इन द सुपर 8। या सो देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू कम आउट एंड डिक्टेट टर्म्स। And on the other hand, for Netherlands, it's another opportunity to showcase why associate cricket belongs on this platform. We've seen associate cricketers so far, associate teams have been doing really well. You know, they've got a lot of applause from the pundits, from the fans. So it's another opportunity. And make no mistake, both teams are on 2 points. ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप डिसाइड हो गया कि कौन, सिर्फ साउथ अफ्रीका थ्रू हो गई है। तो इट्स इज वेरी मच ओपन। हाँ, नेदरलैंड्स में क्या है कि नेदरलैंड्स को 2 बड़े कठिन गेम है, एक बांग्लादेश है, उसके बाद श्रीलंका है। जहाँ की बांग्लादेश के पास ये मैच के, अगर ये मैच हारते भी है, नॉट दैट आई एम सेइंग दे विल, उसके बाद नेपाल खेलने के लिए है। सो दे स्लाइटली हैव इट इजी, बट इन क्रिकेट दे डोंट नीड टू टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, दे हैव टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, बांग्लादेश। राइट तन्मय। फहद, यहाँ पर अगर तस्किन की बात करें और क्लेन की बात करें, इन दोनों में से कौन से स्ट्रॉन्ग बॉलर्स आपको लगता है? दोनों ही टीम के स्ट्रॉन्ग बॉलर्स रहे हैं तो उनमें से, पर तब भी सबसे बेटर आपको लगता है इन दोनों में से कौन से हैं? देखें ये विकेट जिस तरह आप सबको पता है कि यहाँ पे हर एक बॉलर बहुत सरप्राइज कर सकता है अगर वो विकेट टू विकेट बॉल करे, क्योंकि यहाँ पे खुद विकेट उस तरीके से बिहेव कर रही है। हमें खाली विकेट टू, जो बॉलर विकेट टू विकेट कर रहा है उसको वो चीज़ फ़ायदा दे रही है। तो हम किसी को पॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हर बॉलर एक अच्छा है जो विकेट टू विकेट बॉल कर रहा है, कि विकेट खुद ही खुद बिहेव कर रहा है, खुद ही खुद अप एंड डाउन कर रहा है विकेट, जो हमने काफ़ी मैचेस में भी देखा भी है कि बॉलर्स को विकेट बहुत सपोर्ट करता हुआ आ रहा है। तो इसलिए लेस स्कोर हो रहा है, क्यों? क्योंकि बॉलर सपोर्ट कर रहा है। तो अगर जितने विकेट पे विकेट करेंगे विकेट टू विकेट, तो आई थिंक ये हर बॉलर के लिए अच्छी विकेट है। हम किसी को नहीं कह सकते जिसने विकेट टू विकेट बॉल किया उसका दिन है। तन्मय, 3 क्रिकेटर्स का नाम मैं चाहती हूँ आपसे कि जिनकी सीक्वेंस वाइज सबसे पहले भेजना चाहिए बांग्लादेश को और नेदरलैंड को, दोनों की टीम के बारे में आप बात कर सकते हैं। 3 बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, 3 सीक्वेंस जो भी आप बताना चाहें। दोनों साइड में, जी, दोनों बोथ साइड, साइड्स। बोथ साइड्स। I would like to see Shanto obviously opening कर रहे हैं. I would like to also see Shakib come and bat at number 3 and let Liton Das open with Shanto. You know, तीनों के तीनों aggressive हैं. Obviously Mamadullah जिस हिसाब से middle overs खेलते हैं, he almost pulled the game off. And you know, he's such an experienced player. I have played with Mamadullah, I remember, and he's got vast experience. He's also led this side. तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश भरोसा उन पे दिखा सकता है मिडिल ऑर्डर पे, और शाकिब को एक फ्री हैंड मिल जाएगा। क्या होता है ना, जब आपका बड़ा प्लेयर को पता है कि मेरे पास 30-40 बॉल हैं, तो एक तरीके से वो भी होता है कि यार आई हैव इनफ टाइम एंड यू नो टूर्नामेंट इज लॉन्ग, तो मुझे मिल जाएगा मौका। तो शाकिब को मेरे ख्याल से जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग लंबा करने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि इनके जो 4-5 बड़े बल्लेबाज हैं उनको ही टॉप 3 में खेलना चाहिए। जैसे आज शाकिब नंबर 3 पे खेल सकते हैं, लिटन दास को ओपन करने दो शांतो के साथ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी रहेगा, और लिटन इज जेन्युइनली एग्रेसिव, यू नो, इज जेन्युइनली एग्रेसिव। वो अगर 30 मिडिल ऑर्डर में मारते हैं, अगर वो पावर प्ले में मारते हैं, तो बांग्लादेश विल बी सेट फॉर अ वेरी बिग टोटल।
Right. जहां तक मैं बात नेदरलैंड्स की करूं कि मैक्स डाउड ने पिछले मैच में अर्धशतक मारा था और विक्रम सिंह और मैक्स डाउड ने एक ही पार्टनरशिप की वजह से ही नेपाल को हराया था, एक बड़ी पार्टनरशिप हुई थी। तो मुझे लगता है वो कैरी ऑन करना चाहिए, बट इनका इंटेंट होना चाहिए। जब भी आप बड़ी टीम के साथ खेलते हो, अगर आप इंटेंट दिखाओगे, दैट्स व्हेन यू पुट देम अंडर प्रेशर। इफ यू आर जस्ट गोइंग टू गो थ्रू मोशंस, आई थिंक Saqib also in the last match only bowled one over because fast bowlers की help हो रही थी. He is going to play a lot more important role over here. So if you're Netherlands batting group, you have to try make sure that they are best bowlers. In fact, they are all good, but try make sure they don't settle. That is when you might have a say in this game. Otherwise, I genuinely see Bangladesh dominating this game. Okay, so you have already told me that Bangladesh is gonna be dominating it. Okay, फहद, यहाँ पर आपसे सवाल है कि अगर नीदरलैंड को डोमिनेट करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? फहद चले गए, तब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर नेदरलैंड्स को आज का मैच अपने पल्ले में रखना है, क्योंकि बांग्लादेश बहुत स्ट्रांग है, तो उन्हें कौन सी ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो आज उनका मैच उनके फेवर में ले आए? देखिए, अगर बॉलिंग कर रहे हैं पहले तो जैसे मैंने पहले ही बोला, हमने जिक्र भी किया है कि बांग्लादेश की टॉप ऑर्डर अभी तक इतनी अच्छी नहीं है, कामयाब नहीं हुई है। तो पावर प्ले में विकेट्स लेने की कोशिश करेंगे तो वो जेन्युइनली उनको प्रेशर में डालेगा। अगर बैटिंग करते हैं तो ट्राई मेक श्योर, अभी जैसे आपने आईपीएल में देखा है कि जैसे बॉल आप मारते रहते हो, इट पुट्स बॉलर्स एंड थिंकिंग टैंक अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। वो 6 ओवर का मोमेंटम, अब ये न्यूयॉर्क वाला मैच इस ग्राउंड नहीं है, यहाँ खेलने के लिए बैटिंग पे बॉल आएगी ही। तो कोशिश इनको ये करना है कि आपको रन बनाने हैं पावर प्ले में, तो वो मोमेंटम उनके साथ रहेगा। 160 170, यू नेवर नो। राइट, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात एक्चुअली मेंशन कर दी कि दे हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग, अदरवाइज दे मे लूज द मैच टुडे. So it's very important to focus on all the pointers which you have mentioned in the program. Yes, They have 2 points on the board, and if they beat Bangladesh today, it suddenly makes the last round of games very interesting. So and they will turn into a very strong team. Yes, right. And look, we've seen this tournament. I think no strong team playing nation who's come and sort of किसे associate players को उन्होंने lightly नहीं लिया है, या teams को lightly नहीं लिया है. You heard Rohit Sharma also say the same thing. You can't take these guys lightly. So there is a lot for Bangladesh to focus on. You cannot take them lightly, especially in a short tournament like this. एक game अगर हार गए, तो you're biting your nails. Right. फहद, आखिरी सवाल, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज आप, बांग्लादेश को या नेदरलैंड्स को? Bangladesh for sure. I think Tanmay has also answered it indirectly that he is in support of Bangladesh. Practical, जो भी क्रिकेट खेलता है, जिसने भी खेला है, वो obviously will go with Bangladesh. But like I said, I'm an associate cricketer. Yes. I have always maintained it also in other shows that 51%, I will always be supporting any associate team that is playing. But practically, and the fact that I've played cricket, I know how strong Bangladesh is. You expect them to do the job, professional job, but sports and cricket is so unpredictable. That's why we love it. You don't know what's going to happen. And that's why we are on the edge of our seats. We've seen already this in this tournament. We've seen Afghanistan win by a huge margin. Not that the lose wasn't surprising as much as the margin was. Yes, it tells you how far they've come in cricket. We've seen that with Ireland the other day lost to Canada, which was not expected. I've played a lot with Ireland, and I know they are one of the strongest associate team playing nations. So that's unpredictability, and that's why we love this game. T20 is all about unpredictable events, no? And anything can happen. With every over, you can lose, you can win. Anything can happen with a ball. Yes. So with this, let's end this program. Thank you, Tanmay and Fahad, for joining the program and sharing your insights on the match. Let's see who's going to win today, Bangladesh or Netherlands. And we all three will go with Bangladesh. But yes, let's pray together for Netherlands as well, so that they can prove their point in this World Cup. So thank you very much for being a part of this program and for all the information. Thank you. Thanks, guys.